ایک بلیٹن کے آغاز میں بات کریں سرد موسم کی۔ ملتان میں شدید سردی کی لہر جاری۔ یخبستہ موسم میں غریب اور مزدور طبقے کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ شہر کے مختلف چوکوں، بازاروں اور فٹ پاتھوں پر بے گھر افراد کھلے آسمان تلے وقت گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزدور پیشہ افراد کا کہنا ہے کہ سردی کی وجہ سے روزگار نہیں مل رہا، جبکہ سرکاری شیلٹر ہوم سمیت کسی قسم کے امدادی اقدامات بھی نہیں کیے گئے۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ ملتان میں شدید سردی کی لہر سے غریب اور مزدور طبقہ زیادہ متاثر ہونے لگا۔ بس سٹینڈ، فٹ پاتھ اور سڑکوں کے کنارے بے شمار مزدور پیشہ افراد کھلے آسمان تلے وقت گزارنے پر مجبور ہیں۔ شدید سردی میں ناکافی کپڑے اور بوسیدہ چادریں ان کی واحد ڈھال بن چکی ہیں، مگر یہ سہولت بھی سرد ہوا کے آگے بے بس نظر آتی ہے۔ کوئی بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے جی، ایسے روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں، یہاں سے بھی اگلے بجھاتے ہیں ہمارے کو۔ کوئی انتظام ہو، کوئی بیٹھنے کی جگہ، پھر تو بندہ بات کرے۔ ایک مزدوری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے کہ یہاں بیٹھنے نہیں ہمارے کو دیتے۔ روڈ کے اوپر بیٹھے مزدور ہیں، کوئی انتظام ہو، کوئی بیٹھنے جگہ ہو پھر تو ہے۔ دور دراز علاقوں سے روزگار کی تلاش میں آئے مزدوروں کا کہنا ہے کہ سردی نے ان کی دہاڑی بھی چھین لی ہے۔ حکومتی سطح پر قائم شیلٹر ہوم ضرورت مندوں کی تعداد کے مقابلے میں ناکافی ہیں۔ بیشتر مزدوروں کو وہاں جگہ نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے کھلے آسمان تلے سردی برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ کاروبار لگنی ویلے پھر رہے ہیں، کوئی کاروبار اللہ دے پھر رہے ہیں، کوئی جو سردی ہے پھر جو لے جاتے ہیں وہ کم پیسے دیتے ہیں، جہاں 1200 1500 ہے وہاں 700-800 دیتے ہیں۔ یہی سردی سے وجہ سے کام ہی نہیں ہے، ویلے بیٹھے ہم فارغ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انتظامیہ ہنگامی بنیادوں پر مستحق اور مزدور پیشہ افراد کے لیے شیلٹر، گرم کپڑوں اور روزگار کے مناسب انتظامات کرے۔ کیمرہ مین غیاث علی کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر، سبزیاں اور پھلوں کی قیمتیں کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ سرکاری نرخوں اور مارکیٹ کی قیمتوں میں واضح فرق برقرار۔ انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں احمد خان۔ ملتان سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکی۔ مارکیٹ میں لہسن 440 اور ادرک 380 روپے فی کلو، جبکہ منڈی میں لہسن 290 اور ادرک 380 روپے فی کلو ہے۔ مارکیٹ میں آلو 60، پیاز 50 روپے فی کلو، جبکہ منڈی میں پیاز 35 اور آلو 30 روپے فی کلو ہیں۔ مارکیٹ میں مٹر 110 اور مونگرے 80 روپے فی کلو، جبکہ منڈی میں دونوں سبزیاں 60 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہیں۔ مارکیٹ میں بیگن 50، شلجم 45 اور گوبھی 40 روپے فی کلو، جبکہ منڈی میں بیگن 35، شلجم 30 اور گوبھی 25 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ مارکیٹ میں لیمو 170، شملہ مرچ 180 اور گاجر 40 روپے فی کلو، جبکہ منڈی میں لیمو 80، شملہ مرچ 90 اور گاجر 30 روپے فی کلو ہے۔ سرکاری نرخوں میں امرود 140، انار 500، پپیتا 270 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں امرود دیسی 250، انار 650، پپیتا 350 روپے فی کلو فروخت۔ مارکیٹ میں مالٹے 140 اور فروٹر 120 روپے فی کلو، جبکہ کیلے 100 سے 120 روپے فی درجن ہیں۔ سرکاری نرخوں میں سیب 172، سیب کالا کلو 350 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں سیب مختلف اقسام کے 300 سے 400 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین غیاث علی کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ دھاتوں کی مانگ بڑھنے کے بعد چاندی کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ۔ بازار میں اب چاندی کے زیور نہیں بلکہ وزنی سلور بار خریدے جا رہے ہیں۔ چاندی کی قیمت اس قدر غیر مستحکم ہو گئی کہ شام کا نرخ صبح تک بدل چکا ہوتا ہے۔ رحیم یار خان سے رپورٹ کر رہے ہیں عاصم صدیق۔ سونے کے بعد چاندی کی قیمت بھی آئے روز بڑھنے لگی۔ چاندی ایسی دھات ہے جو کبھی زیور سے بڑھ کر محبت، روایت اور عزت کا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک وقت تھا جب خوشی ہو یا رشتہ طے پائے چاندی تحفے میں دی جاتی تھی۔ چاندی کی پلیٹ، چاندی کی سراہی، چاندی کے چمچ مہمانوں کے توازوں کے لیے بطور برتن استعمال ہوتے تھے۔ بچوں کی پیدائش پر چاندی کے بنے خود سے تحفے میں دیے جاتے تھے۔ مردوں کی انگلیوں میں چمکتی انگوٹھیاں، خواتین کے کانوں میں جھمکے، گلے میں ہار اور پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیب، یہ سب زیور سے بڑھ کر گھروں میں خوشیوں کی آواز تھی۔ چاندی کو بری بلاؤں سے حفاظت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ چاندی میں لپٹا ہوا تعویذ گلے کی زینت بنتا تھا اور دل کو اطمینان بھی دیتا تھا، مگر آج وقت بدلنے کے ساتھ چاندی کی پہچان بھی بدل گئی ہے۔ چاندی جو ہے وہ 10,000 اس وقت 700 کا ریٹ ہے، تو اب ایسے ہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی کاریگر ہیں وہ سارے ویلے بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے ہمارا، یعنی کہ بالکل کام جو ہے بالکل فلاپ ہو چکا ہے۔ کوئی گاہکی نہیں ہے، کوئی سیل نہیں ہے، دن بدن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑھنے کی وجہ سے جو ہماری پزیبیں، جو ہمارا سامان عام طور پر جو روزانہ کی تعداد میں ہمارے سے تعویذ لے کے جاتے تھے وہ بھی اب گاہک کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ عام آدمی کے لیے کبھی چاندی خریدنا آسان تھا،
मगर आज ये ज़ख़ीरा अंदाजों के गोदामों और सरमायाकारों की तिजोरियों में कैद है, इसलिए गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। कीमत के हवाले से बात करते हैं तो कीमत बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन्वेस्टर ज़्यादा होता जा रहा है चांदी के अंदर। जितना इन्वेस्टर ज़्यादा होगा चांदी का रेट हाई होगा। ये जो तावीज़ कल 300 रुपए का एक हुआ करता था, अब ये 1600 रुपए का एक है। गरीब तावीज़ तो लेता था ना, कुछ ले या ना ले। कारीगर इस टाइम हमारे बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम के हालात नहीं है। धातुओं की मांग बढ़ने पर चांदी महंगी होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है, क्या चांदी के वो तोहफे, जेवर, प्लेटें, सराहियां फिर कभी घरों में लौट पाएंगी, या फिर ये सब भी कहानियों, यादों और बुजुर्गों की बातों तक महदूद रह जाएंगी? कैमरामैन अनवर सोल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का दौरा मुल्तान। चीफ सेक्रेटरी ने गुलगश्त, ब्रांड रोड, मॉडल रोड मंसूबा, मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट और किला कोहना कासिम बाग ब्यूटिफिकेशन अपग्रेडेशन साइट का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी ने जिले इंतजामिया को कौन कौन से टास्क दिए हैं, जानते हैं गौहर रहमान शेख से। गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान 2 रोज़ा दौरे मुल्तान पर इस वक्त मौजूद हैं और दिन भर जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स के मनसूबाजात हैं वहां पर दौरा किया गया है। खास तौर पर मुल्तान के ब्रांड रोड के ऊपर जो है उसे मॉडल रोड बनाने के हवाले से रोही की जानिब से सबसे पहले ये खबर नशर की गई थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस मनसूबे के ऊपर काम का भी आगाज हो गया, जिसका चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जानिब से इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ मुल्तान एवेन्यू मनसूबा 90 किलोमीटर का ये 18 किलोमीटर का ये रोड है जिसकी अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है और ये रोड मनसूबे के हवाले से भी इसकी साइट का जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जानिब से दौरा किया गया है। काम की रफ्तार का जायजा लिया गया है और इसके साथ साथ हाईवे डिपार्टमेंट इस मंसूबे को लेकर चल रहा है, उसे हिदायत की गई है कि बरवक्त जो डेडलाइंस मंसूबे की उस डेडलाइंस के अंदर मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम का सिलसिला जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जानिब से मत्ती तल जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा किया गया है, काम की रफ्तार का जायजा लिया गया है और यकीन दहानी कराई गई है जो भी फंड पंजाब सेक्रेटेरिएट को फाल करने के हवाले से। गौहर रहमान शेख अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का दौरा मुल्तान। चीफ सेक्रेटरी ने गुलगश्त, ब्रांड रोड, मॉडल रोड मंसूबा, मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट और किला कोहना कासिम बाग ब्यूटिफिकेशन अपग्रेडेशन साइट का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी ने जिले इंतजामिया के हवाले से भी मुख्तलिफ टास्क फ्राहम किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का दौरा मुल्तान है। चीफ सेक्रेटरी ने गुलगश्त, ब्रांड रोड, मॉडल रोड मंसूबा, मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट और किला कोहना कासिम बाग ब्यूटिफिकेशन अपग्रेडेशन साइट का दौरा किया है। गौहर रहमान शेख, इस हवाले से राब्ता इनसे बहाल हो चुका है। गौहर, बताइएगा। जी, मुल्तान ब्यूटिफिकेशन प्लान को लेकर भी चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुल्तान के किला कोना कासिम बाग का दौरा किया गया है और इसी तरह से एक प्रोजेक्ट तश्कील दिया गया था जिसमें जो लाइब्रेरी है वहां पर कॉफी कैफे बनाया जाएगा और लोग जो है किताब के साथ साथ वहां पर कैफे पर चाय भी पी सकेंगे, कॉफी भी पी सकेंगे। इस मंसूबे को भी हतमी शक्ल देने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। मुल्तान के किले की ब्यूटिफिकेशन प्लान के हवाले से जो काम जारी है और फूड स्ट्रीट का मंसूबा वहां पर। ठीक है, गौहर रहमान शेख इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे बराह रास्त, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा की निगरानी में शहर की खूबसूरती में इजाफे का नया मंसूबा। डीसी बहावलपुर का रेलवे स्टेशन के सामने ग्राउंड का दौरा। रेलवे स्टेशन बहावलपुर के बाहर ग्राउंड और ग्रीन बेल्ट की तज़ीन और आराइश का फैसला। ग्रीन बेल्ट और ग्राउंड में लाइट्स और फूल नस्ब किए जाएंगे। आपको बताएं कि मुल्तान में शब मेराज की बरकतों और रहमतों वाली रात है। शब मेराज की मुनासबत से मसाजिद सज गई हैं। फर्जंदाने इस्लाम की बड़ी तादाद मसाजिद का रुख करने लगी। मसाजिद में जिक्र और अस्कार की महफिलें सजना शुरू हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं सैयद सुहेब बुखारी से। सुहेब, बताइएगा इससे मुतालिक। आज बिल्कुल आज रहमतों बरकतों वाली ये रात है, शब मेराज, और इसी सिलसिले में मुल्तान शहर की जो मसाजिद है उसको जो है वो बरकी कुमकुमों से जो है वो सजा दिया गया है। फरजांदाने इस्लाम की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने करीबी मसाजिद का जो है वो रुख भी कर रही है और इस वक्त हम खानकाह हामदिया पे जो है वो मौजूद है। यहाँ पर सालाना महफिल नात का भी जो है वो इनकाद जो है वो किया जाता है। सना खाना मुस्तफ़ा की जानिब से गुलहाए अकीदत भी जो है वो पेश की जाती है। तो मसाजिद में ज़िक्र अस्कार की महफिलों का जो सिलसिला है वो भी
जो है वो अब शुरू हो चुका है। कुछ बच्चे भी जो हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं मस्जिद में, उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहोगे आज शब मिराज पर क्या इबादत जो है वो की जाएगी? जी, आज हम इबादत करने आए हैं और शब मिराज की रात है। हम अपने गुनाहों की माफ़ी करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मुल्तान शहर के मारूफ नातखा मोहसिन कादरी भी जो है वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद है, उनसे भी जो है वो बात करते हैं। मोहसिन, आज कुछ शब मिराज के हवाले से जो है वो कुछ गुलहाए अकीदत जो है वो हमारे रूही के नाज़रीन को भी जो है वो पेश कर दें। हाँ, सरला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं। कोई हद है उनके उरूज की, सल्लू अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। आज शब मेराज, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज की रात, आपने शब असरा की रात, इस रात अंबिया की इमामत फरमाई और आपने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया ने इकामत की और आपने इमामत फरमाई, नमाज अदा की। और यही वो रात है जिस रात अल्लाह करीम ने हमें नमाज़ों का तोहफ़ा बख्शा। अल्लाह करीम हमें 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी हवाले से एक कलाम के मज़ीद अशार। हाँ, मेराज वाले आका मन में बसाऊं तो से प्रीत लगाऊं, प्रीत लगाऊं। ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। खालिक को याद जब महबूब आए, जिब्रील अमीन लेके बुर्राक आए। मोहसिन कादरी जो है वो हमारे साथ मौजूद है और आज रात भर रहमतें और बरकतें समेटने की रात है। जो फर्जंदान इस्लाम है वो अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर अपनी दुआओं की दुआएं मांगेंगे, अपने गुनाहों की जो है वो माफ़ी अल्लाह ताला से जो है वो मांगेंगे। तो इसी तरीके से जिक्र व अस्कार का सिलसिला जो है वो मुल्तान शहर की जो मसाजिद है वहाँ जारी रहेगा। दूसरी जानिब अगर हम सिक्योरिटी इंतजाम की बात कर लूँ तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो मुख्तलिफ मसाजिद में मौजूद है, जबकि मसाजिद के दाखिली रास्तों पर जो वॉक थ्रू गेट्स है उसको भी जो है वो नस्ब किया गया है। और तो इसी तरीके से रात गए तक इसी तरीके से ठीक है। सैयद सुहेब बुखारी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इसी से मुतालिक बात करें, आपको बताएं कि बहावलपुर में मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से इबादत गाहों और घरों में इबादत के लिए खुसूसी इंतजामात। मारूफ आलमदीन मुफ्ती जावेद मुस्तफा सईदी का कहना है शब मेराज उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत और बख्शिश का जरिया है। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, शब मेराज के मौका पर कौन सी इबादत करनी चाहिए और खुसूसी तौर पर आज रात मसाजिद में भी इबादत का एहतमाम जो है इज्तिमाई तौर पर किया जाएगा। हमारे साथ इस वाले से बात करने के लिए मुफ्ती जावेद मुस्तफा मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। मुस्तफा, बताइएगा, फजीलत की रात है, कौन सी इबादत जो हैं वो आज शहरी कर सकते हैं और इस रात की बरकत कौन कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जी, आज की जो रात है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात है और आज की जो रात की अजीम बरकत है और इसकी जो अफादियत है वो ये है कि अल्लाह ताला इस रात में गुनहगारों की बख्शिश फरमा देता है।
गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसकी जो रहमत का ऐलान होता है वो आम होता है। लेकिन क्योंकि इस रात की जो निस्बत है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपना महबूब को अपना दीदार कराया है, इस वजह से इस रात में रहमत आम होती है और जो इबादात हैं और जो नवाफिल की कसरत करनी चाहिए और तिलावत कुरान की भी कसरत करनी चाहिए और जो कुबूर हैं उनकी ज़ियारत करनी चाहिए और खुसूसन ऐसी रातें मेराजुन नबी हो, शब बारात हो, ऐसी रातें अल्लाह पाक ने उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस रहमत बनाई है और बाइस मगफरत फरमाई है। तो हम ताहिर चौधयाना अपडेट कर रहे थे, तफसीलात से बहुत शुक्रिया। खानेवाल में शब मेराज के मौका पर मसाजिद में चरागा और खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम बताइएगा। जी, दुनिया भर की तरह खानेवाल में भी शब मेराज के मौके पर खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है और एहतमाम किया गया है। महाफिल होंगी, खुसूसी इबादत और नवाफिल अदा किए जाएंगे। शब मेराज के हवाले से हम बात करेंगे, हम इस वक्त मरकज़ी जामे मस्जिद में मौजूद हैं, इस हवाले से जानेंगे। बताइएगा शब मेराज के हवाले से खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है, इस मौके पर क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि उसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु को अपने एक अजीम मौज़ा मिराज का अता फरमाया, जो कि नबी अल्लाह ताला ने किसी अपने पैगम्बर रसूल को नहीं दिया। जो मौज़ा मिराज है वह सल्लल्लाहु को हमारे अता फरमाया और आज की रात बड़ी अहमियत की हामिल है। आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में महफिल होगी, सलात तस्बीह होगी और इंशाअल्लाह इबादत की जाएगी। तो तमाम उम्मत मुस्लिम से अपील करते हैं कि आज की रात को ज़ौक़ शौक़ से इबादत करें। अल्लाह ताला। मोहम्मद नदीम मुगल अपडेट कर रहे थे, तफसीलात से बहुत शुक्रिया।